Hello, greetings to all of you. Myself Pooja Arya, and today we are going to learn about management skills. But before that, let's discuss some topics related to management skills which will help us to understand our today's topic in a better way. Let's start by understanding the term manager. मैनेजर वह पर्सन होता है जो किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी ग्रुप ऑफ स्टाफ को कंट्रोल या एडमिनिस्टर करता है. सो बेसिकली ही इज़ द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन. According to Henry Fayol, who was a French management theorist, a manager should have some abilities for fulfilling all those responsibilities, such as number one, planning. मीन्स एक मैनेजर के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बना के नेसेसरी स्ट्रेटजीज़ को डेवलप कर सके ऑन हाउ टू अचीव द सेट गोल्स. नंबर सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग, विच मीन्स एक मैनेजर अवेलेबल रिसोर्सेज सच एज टाइम, मनी एंड लेबर को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज़ को एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करने में सक्षम भी होना चाहिए. नंबर थ्री, coordinating, which means a manager should be able to assemble or organize all the different activities and people involved in the task towards the same goal for the effective result. Next, leading, which means manager should motivate, inspire and encourage employee towards higher level of achievement. And the last one is controlling, which means a manager should have the ability to monitor and then evaluate the activities of the organizational progress towards the fulfillment of the goal. Now coming next, let's understand what is management. मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है जिसमें ह्यूमंस और बाकी रिसोर्सेज का यूज़ करके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग की जाती है ताकि जो भी सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें अचीव किया जा सके. The concept of management can be understood by certain functions which involves number one, human relations, which means accomplishing the objectives by inspiring and directing the efforts of others. Number two, leadership, which means the power of encouraging, motivating and leading the people. Number three is decision making. This function is also related to the leadership. That means the art of making right decision at the right time. Next is productivity, which means the art of achieving maximum prosperity with a minimum effort. Last one is integration, means coordination of human and material resources. ये सारे फंक्शंस कंबाइंड होके मैनेजमेंट बनाते हैं. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग दैट अ मैनेजर डज. मैनेजर जो भी काम करता है वो कंबाइंड फॉर्म में मैनेजमेंट कहलाता है. नाउ लेट्स सी मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है. नंबर वन, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. एज़ यू नो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे लोग होते हैं जो एज अ ग्रुप काम करते हैं, तो मैनेजमेंट हर किसी के इंडिविजुअल एफर्ट को एक कॉमन डायरेक्शन देता है विच हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. नंबर टू इज़ इट इंक्रीज एफिशिएंसी. हर मैनेजर का एम होता है टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड टू इंक्रीज द आउटपुट. And efficiency increase when we use fewer resources. So management use those resources by properly allocating them to reduce the wastage, which ultimately decrease the cost and leads to higher profits. Next one is it creates dynamic organization. As we know that the environment in which an organization works is subject to continuous changes. So management helps to adapt to these changes. Moving on to next is it helps in achieving personal objectives. मीन्स मोटिवेशन एंड लीडरशिप टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करके मैनेजमेंट इंडिविजुअल के अंदर कोऑपरेशन, कमिटमेंट, टीम स्पिरिट जैसी हैबिट्स को डेवलप करता है. नेक्स्ट इज इट एंश्योर्स effective use of managers so that the benefits of their experience, skill and maturity are available to the organization. Next, it facilitates introduction of new techniques also. Last but not the least, a dynamic and progressive management guarantees development of sound organization which can face any situation with ease and confidence. हमने अभी तक देखा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट होता है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. द लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइंस दैट ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का स्टेटस क्या है या फिर उसके पास कितनी अथॉरिटी है. द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. नंबर 1 टॉप लेवल,
second middle level, third lower or supervisory level management. Now if we'll see them briefly, number 1, which is top level management. This level of management is responsible for controlling and overseeing the entire organization. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रिंसिपल विल बी द टॉप लेवल मैनेजमेंट. Number 2, which is middle level management, is responsible for executing plans which comply with the organization's policy. This level acts as an intermediary between top level and low level. For example, vice principal. Number 3, low level or supervisory level of management, it focuses on controlling and directing. They serve as role models for the members they supervise. एग्जाम्पल के तौर पे द टीचर्स एंड फैकल्टीज ऑफ दैट स्कूल. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव मैनेजरियल रोल्स. मीन्स एक मैनेजर को कौन कौन से रोल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं मैनेजमेंट के दौरान. मोस्टली लोगों को लगता है कि मैनेजर का ऐसा सच कोई काम नहीं होता. वो आराम से अपने ऑफिस में बैठकर सोचता है, प्लानिंग करता है और बाकी सबको इंस्ट्रक्शंस देता है बस. बट ऐसा नहीं होता. इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द वेरियस मैनेजरियल रोल्स जो मैनेजर को हर दिन परफॉर्म करने पड़ते हैं. इन 1973 हेनरी मिन्सबर्ग, जो कि एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपनी बुक द नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क में अपनी रिसर्च के बेसिस पर बताया कि मैनेजर दिन भर सिर्फ प्लानिंग या फिर स्ट्रैटेजीज़ नहीं बनाते रहते. इनफैक्ट मैनेजर का रोल बहुत स्ट्रेसफुल होता है. दे कुड नॉट स्टिक टू वन टास्क एज दे हैव न्यूमरस प्रोजेक्ट्स. मैनेजर्स एक्चुअली हैव अ टफ टाइम ऑन देयर जॉब्स. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मिन्सबर्ग ने मैनेजर की सारी एक्टिविटीज़ को मेनली 3 रोल्स में कैरेक्टराइज कर दिया, विच आर नंबर 1 इंटरपर्सनल रोल्स, देन इंफॉर्मेशनल रोल्स एंड डिसीजनल रोल्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ईच वन ऑफ देम इन ब्रीफ. नंबर 1 इंटरपर्सनल रोल्स, जो कि फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, विच इज़ फिगर हेड, जिसमें सारी सिम्बॉलिक ड्यूटीज़ इंक्लूड होती हैं विच आर लीगल इन नेचर. देन लीडर, जिसमें एक गुड लीडर होने के सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं. फॉर इंस्टेंस बिल्डिंग अ टीम, कोचिंग द मेंबर्स, मोटिवेटिंग देम एट्सेट्रा. देन लेसन, जिसमें ऑफिस के बाहर इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस के लिए नेटवर्क बनाना और उन्हें मेंटेन करना इंक्लूडेड है. नेक्स्ट वी हैव इंफॉर्मेशनल रोल्स, विच इज़ ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. नंबर 1 मॉनिटर, इस रोल में वो सारे इश्यूज़ की इंफॉर्मेशन का पता लगाना इंक्लूडेड होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं. देन डिससेमिनेटर, अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिससेमिनेट या फिर ट्रांसमिट करना. नेक्स्ट इज़ स्पोक्स पर्सन. इस रोल के अंदर एक मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव बनना होता है. द लास्ट नंबर 3 इज़ डिसीजनल रोल्स, जो कि फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. नंबर 1 एंटरप्रेन्योर, इसमें वो सारे एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो इनोवेशन या फिर कोई भी चेंज को एनकरेज करते हैं. देन डिस्टर्बेंस हैंडलर, नेम से ही क्लियर है कि सारे अनएक्सपेक्टेड डिफ़िकल्टीज़ को स्मार्टली हैंडल करना. Then resource allocator means being responsible for the allocation of resource like time, equipment, funds, human resource, etc. And the last, negotiator, it includes representing the organization in negotiations which affect the manager's scope of responsibilities. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मैनेजमेंट स्किल्स. उससे पहले ये जानते हैं कि स्किल क्या होती हैं. तो स्किल्स यानी कि कौशल. स्किल वो एबिलिटी होती है जो इंसान को कोई पर्टिकुलर काम करने के काबिल बनाती है. अब हमने अभी तक समझा कि मैनेजमेंट कितना चैलेंजिंग टास्क है आजकल के समय में. इसलिए मैनेजर के पास कुछ एसेंशियल स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है जो उसके मैनेजमेंट को बेहतर बना सके, और इन्हीं एबिलिटीज़ को हम मैनेजरियल स्किल कहते हैं. Manager must have essential skills to manage people and technology while performing management roles. Management roles जो हमने अभी पढ़े थे, उनको परफॉर्म करने के लिए भी इन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है. In 1974, Robert Katz found in his research that managers needed 3 essential skills. These are technical skills, human skills and conceptual skills. टेक्निकल स्किल्स, इसका मतलब ये है कि किसी भी स्पेशलाइज्ड फील्ड की नॉलेज होना, सच एज
इंजीनियरिंग, कंप्यूटर्स, फाइनेंशियल या फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग एट्सेट्रा। ये जो स्किल्स होती हैं ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर मैनेजर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली मेंबर्स के साथ डील कर रहे होते हैं। Next is human skills. These skills involve the ability to work well with other people, both individually and in a group. क्योंकि मैनेजर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली पीपल्स के साथ डील कर रहे होते हैं, दैट इज़ वाई दिस स्किल इज़ क्रूशियल। जो मैनेजर्स ह्यूमन स्किल्स में बहुत बेहतर होते हैं वो अपने पीपल्स से जो है, मेंबर्स से जो हैं, बहुत अच्छे और बेहतर आउटकम्स पाते हैं, बिकॉज दे नो हाउ टू कम्युनिकेट, मोटिवेट, लीड एंड इंस्पायर देम। ये जो स्किल होती हैं ये सारे ही लेवल्स जो मैनेजमेंट के लेवल्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। देन एट लास्ट वी हैव कॉन्सेप्चुअल स्किल्स. These skills are the abilities that allows the manager to understand complex situations to develop creative and successful solutions. In other words, the ability to address difficult scenarios with an innovative approach. Now next we have a small diagram representation of management skills necessary at various levels of an organization. Here you can see कि जो टॉप मैनेजमेंट लेवल है वहाँ पर टेक्निकल स्किल्स बहुत कम चाहिए होती हैं, लेकिन ह्यूमन और कंसेप्चुअल स्किल्स चाहिए होती हैं। मिडिल मैनेजमेंट लेवल में आपको तीनों ही स्किल्स बराबर रूप से चाहिए होती है। लास्ट सुपरवाइजरी मैनेजमेंट लेवल में आपको टेक्निकल और ह्यूमन स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा चाहिए होती हैं, बट आपको जो है कंसेप्चुअल स्किल्स इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। Coming on to next topic, which is management inside a classroom. Now question arises, why does there is a need for a teacher to learn the managerial skills? Well, as you know that our education system has expanded and जो classes हैं वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में students हैं, जो कि न्यू एज टीचर्स के लिए एक चैलेंज है। और इसके साथ ही साथ मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन, जिसमें कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करें। इसलिए इन डिमांड्स के चलते यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि टीचर शुड हैव मैनेजरियल स्किल्स, ताकि क्लासेस लेने के साथ साथ वो बाकी काम जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क लाइक मैनेजिंग एडमिशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन, स्पोर्ट्स, टाइम टेबल, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी एट्सेट्रा भी अकम्प्लिश कर सकें। लेट्स डिस्कस इन ब्रीफ दैट मैनेजरियल रोल्स परफॉर्म करते वक्त क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसके लिए टीचर्स को मैनेजरियल स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो नंबर 1 इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स. Beside teaching content in the class, the teacher should also organize the subject inputs such as teaching notes, study material, etc. based on methodology and syllabus requirement. प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी टीचिंग एड का एक अहम हिस्सा बन गई है। OHPs, PPTs, मल्टीमीडिया लैब्स, वर्चुअल क्लासरूम और डिजिटल क्लासरूम एट्सेट्रा जैसे टीचिंग एड्स यूज़ हो रहे हैं। सो इट इज़ नेसेसरी टू बी कम्प्लीटली अवेयर अबाउट दीज. Next is time management. We know teaching process includes preparation for the class, execution in the class, and then testing, assessing, giving feedback and taking remedial actions. So good time management skills and proper planning is necessary. Number 3 is planning. Planning is very crucial for any kind of activity in any field. It is essentially based on time limit, time available, individual capacity, resource available, ultimate purpose of the activity, etc. It is essential from student's life to a professional career. नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन. ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्लासरूम के अंदर, क्योंकि यह एक ऐसे स्किल है जो स्टूडेंट के अंदर बाकी और भी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करता है. Next is managing groups. Teachers should have the ability to manage the groups to make it a team and enhance their learning. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट इज़ गाइडिंग स्टूडेंट. स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को समझना फिर उसे गाइड करना, यह एक बड़ा डिस्टिंक्ट फीचर है जो एक टीचर को बाकी टीचर से अलग करता है. इट रिक्वायर्स एडिक्वेट ह्यूमन स्किल्स. नेक्स्ट वी हैव मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. Even though it is not that necessary, but still, beside teaching, teachers should also have a little knowledge about administrative work, such as conducting examination, timetable, managing library, etc.
Then we have subject knowledge. The teacher should always bring the updated knowledge into the classroom and should also have the expertise to impart it. ये सारे पॉइंट्स टीचर के कुछ रोल्स को हाईलाइट करते हैं जो कि मैनेजरियल स्किल्स को एग्जीक्यूट करते समय रिक्वायर्ड होते हैं. Now at last if we conclude this, we understand that जैसे जैसे आजकल वर्क एनवायरनमेंट मल्टीडिसिप्लिनरी होता जा रहा है उसी के साथ साथ टीचर का जॉब भी इवॉल्व हो रहा है. Nowadays a teacher cannot restrict herself or himself to academics only. Teacher has to juggle different roles to justify her or his job. एंड टीचिंग के इस चैलेंजिंग जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए सो दैट स्टूडेंट्स के समक्ष एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके, इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट टीचर्स शुड ऑल्सो बी ट्रेन्ड एज मैनेजर्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.